Hello everyone, welcome and welcome back to this channel. If you haven't subscribed it yet, please subscribe, and if you are already a subscriber, welcome back. My name is Aarti. I'm a content creator, a lifestyle and therapeutic content creator. I am a therapist myself and a life coach. And in today's episode, we are going to discuss signs that a relationship is already over. A lot of people come and they discuss that this is happening, that is happening, और मुझे ये मालूम नहीं है कि whether he's into me or he's still not into me, whether I have lost the connection. There's some kind of connection between us, but it doesn't feel like how it used to feel earlier. तो आज मैं ये जो वीडियो है वो इसके लिए ही बना रही हूँ, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि ऐसे क्या साइंस हैं आपके रिलेशनशिप में जिससे आपको ये पता चले दैट इज इट ऑलरेडी ओवर और देर इज स्टिल अ चांस. ओके, सो सबसे पहले बिट्रियल. इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ बिट्रियल दैट यू बीन थ्रू, चीटिंग हुआ है, बिट्रियल हुआ है, promises तोड़े गए हैं, या एनी सच काइंड ऑफ बिट्रियल वेयर यू फील that the promise has not been kept. The word, I mean, the person has not kept his or her word. It can also be applicable for males as well as for females. तो अगर उन्होंने अपनी कहे को माना नहीं है, उन्होंने जो बोला उसके अकॉर्डिंग they haven't applied that, or they haven't behaved like that. See, betrayal might not always be a betrayal in terms of having a relationship outside. It's not about a third person or a relationship that the person may have. It's also about other things जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने झूठ बोला है, कुछ ऐसी बातें मेजर इंपॉर्टेंट उनके लाइफ के बारे में जो आपको मालूम होनी चाहिए और वो आपको नहीं मालूम है या आपसे छुपाई गई हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक बिट्रेयल ही है. ओके, सो दैट्स अ मेजर रेड फ्लैग जहाँ पे हमें सोचना चाहिए दो बार. एंड वी मस्ट डिसाइड वेदर वी वांट टू कीप दिस रिलेशनशिप or we want to call it quits. Okay, next is there is no emotional connection. See, it is very important. Relationships में अक्सर physical और sexual connection तो होता ही है, but over a period of time कहीं ना कहीं वो physical और sexual attraction भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, and you start taking each other for granted, and not always the spark is there. हालांकि that's also one of the orange flags per se, but I will say physical attraction कम होना is still quite natural, but if there is no emotional connection between both of you, you can just imagine अगर दो लोग एक साथ आते हैं तो in fact emotional connection ज़्यादा होना चाहिए. The more you know a person, the more you tend to get connected emotionally. You connect with that person, you care for that person, आप उनको और अच्छे से जानना चाहते हैं, आप उनका इमोशन समझ जाते हैं, उनकी छोटी छोटी बात विदाउट इवन देम बीइंग सेइंग, बिना कहे भी आप उनकी बातें समझ जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट. बट अगर ये उल्टा हो रहा है, रादर देन अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, आपका इमोशनल कनेक्शन कम होता जा रहा है, सो दैट प्रूव्स कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप डिटोरिएट हो रहा है. Okay, so that's when you have to start taking some action. Okay, um next is there's a lot of resentment. So I am looking at my notes. I already have them e-notes with me, and allow me to look into it, otherwise I'll forget. नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि मुझे क्या next point बोलना है. So I have made notes and I am reading from there. So a very important thing is relationship में there's a lot of resentment. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप एक दूसरे को forgive नहीं कर रहे हैं, forget नहीं कर रहे हैं. आप पुरानी छोटी छोटी बातों को पकड़ के एक दूसरे को कहीं ना कहीं we make the other person feel low, we make the other person look at the other person like उन्होंने कुछ गलती कर दी है, और पुरानी बात को लेके कहीं ना कहीं रिसेंटमेंट है, पछतावा है कि why did I do this, why did I go with you the other day, मुझे ये नहीं करना चाहिए था या वो नहीं करना चाहिए था, या हमें इस रिलेशनशिप को आगे ही नहीं लेके जाना चाहिए था. A lot of times it happens that हम ये बात बोल देते हैं कि
यार हमें ये रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए था, बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट्स अ वेरी वेरी बिग साइन ऑफ सेइंग दैट वट एवर यू हैव डन आप उसको रिग्रेट कर रहे हो। नंबर वन, रिग्रेट करने के बाद अगर आप उस इंसान को यू नो you don't respect that person, and there's a lot of resentment, there's a lot of anger, there's a lot of such negative emotions, and आप उसी रिग्रेट में आप सामने वाले इंसान को बिलिटल करते हैं, आप सामने वाले इंसान को छोटा दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये निशानी है दैट योर रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग राइट। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज अ लैक ऑफ एफर्ट। देखिए काफी बार ऐसा होता है कि हो जाती हैं बातें, या गुस्सा आ जाता है, या आप कुछ बोल देते हैं गलती गुस्से में, और बाद में एटलीस्ट आप उसके बारे में कुछ एफर्ट डालते हैं ताकि आप उसको कवर अप कर सकें, ताकि आप उसको मेकअप कर सकें। एंड इट्स नॉट अबाउट मैनिपुलेशन, हम मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं कवर अप करके, बट यहाँ पे हम उनको ये दिखाना चाह रहे हैं कि ठीक है मुझसे गलती हो गई थी पहले, बट नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक अप फॉर इट। I forgot to take you out the other day, but today I'm going to make up for it, and I'm coming home early, और चलो आज हम कहीं घूमने जा रहे हैं। तो that's kind of making up for something that did not happen earlier. So there's an effort. आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली कि एक एफर्ट है, कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे के लिए डालते हैं ये एफर्ट कि जो जहाँ पे कमी रह गई, या जहाँ पे चीज़ें पूरी नहीं हो पाई, या किसी से कुछ गलती हो गई, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए और अपना प्यार दिखाने के लिए एक एफर्ट डालते हैं लोग। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एफर्ट डालें। लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, थिंग्स विल हैपन, लाइफ हैपन्स, बहुत कुछ लाइफ में आएगा, लेकिन द पॉइंट इज कैसे आप उसको पकड़ के आगे लेके चल रहे हैं, ना कि पीछे जा रहे हैं, ना कि हम ये सोच रहे हैं कि अरे व्हाई डिड आई गेट इनटू दिस रिलेशनशिप, व्हाई डिड आई फॉल फॉर यू, या ये तो शादी ही गलत हो गई। इस तरह के सेंटेंसेस जब हम यूज करते हैं तो दैट शोज दैट कहीं ना कहीं रिग्रेट है, और कहीं ना कहीं एफर्ट नहीं डाला जा रहा। ठीक है पहले हो गई कुछ गलतियां, बट नाउ आई इट्स टाइम टू मूव ऑन, इट्स टाइम टू पुट डबल द एफर्ट एंड कॉम्पनसेट फॉर द लव जो आप पहले नहीं दे पाए, राइट? सो that's how it is. And the fifth and the last point is you don't prioritize each other. So in relationships often we have to ये मैं वर्ड नहीं यूज़ करना चाहती हूँ बिकॉज ये काफ़ी नेगेटिव कॉनोटेशन आ जाता है इसका, लेकिन कहीं ना कहीं एक एडजस्टमेंट होता है, कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है, एंड आपको कहीं ना कहीं अपने लिए, अपने लाइक्स डिसलाइक्स के लिए टाइम निकालना होता है। प्लस यू ऑल्सो हैव टू इंश्योर दैट यू आर प्रायोरिटाइजिंग बोथ ऑफ यू, सो आप खुद तो एक एंटिटी है ही, लेकिन आप जब इकट्ठे आ जाते हैं, और इकट्ठे आने के बाद चाहे आप उसको रिलेशनशिप बोलें, मैरिज बोलें, डेट बोलें, वट एवर, देयर इज अनदर एंटिटी दैट गेट्स क्रिएटेड व्हेन यू टू कम टुगेदर। एक नई एंटिटी क्रिएट होती है, एक नया एनर्जी होता है व्हेन यू बोथ आर टुगेदर। सो व्हेन you are not prioritizing things which are common for you both, which are required for this new एंटिटी, ये नई आइडेंटिटी जो आपकी बनी है, उसके ऊपर आप प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपने पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स या अपने पर्सनल चीज़ों पे प्रायोरिटाइज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, छुट्टी है, सैटरडे संडे है, नाउ you would want to go out with your friends, or you would want to have there's a get together, you would want to go to that get together, आप definitely जाएंगे। लेकिन अगर आप महीने में हर हफ्ते, हर सैटरडे आप बाहर जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने कॉलीग्स के साथ, एंड यू आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग व्हाट योर पार्टनर नीड्स, then there's a problem. आप जाइए, definitely जाइए, but have a discussion with your partner. Okay, this Saturday I'm going with my friends. Next Saturday we will go with your friends, or we will go alone together, or we'll go to your family's place, or whatever, XYZ. तो आपको prioritize करना है कि आप अपनी personal life को भी कैसे मैनेज कर रहे हैं, अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट है मेरा उसको, प्लस आप उनके इंटरेस्ट को भी प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल
अगर ज़रूरत पड़ती है तो you can ditch that plan and make a plan with your partner so that they feel good. So this shows that one, you are putting an effort, going back to the last point, and also you're prioritizing them. For you, they are important and not just your friends. Okay, so I hope इससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिला होगा on how your relationship is right now. And I hope and I wish you find a way out to come out of your relationship issues. If you want to book a one-to-one call, there's a link in the bio, link in the description. You can also follow me on Instagram at Aarti Chawla Official. आप वहाँ जाके एक 1-to-1 कॉल बुक कीजिए, लिंक बायो में दिया हुआ है, नीचे भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है. Connect with me if you still want a 1-to-1 coaching on how you can manage your relationships and how you can make it better. Thank you so much. You are listening to Aarti Chawla, and you have a very great week ahead. Ciao. Myself.